Welcome back to all of you. This is my 14th video related to chapter 2 of entrepreneurship, that is entrepreneurial planning. Students, in the previous video, we have studied about the one of the component of business plan, that is operational plan. Now we are moving the next component of operational plan, that is organizational plan. Previous video we have studied about the operational plan. Now we will study about the organizational plan. What is organizational plan? It is related to the organizational structure. Organizational structure. So students, first of all, we see here the definition of the organizational plan. What is organizational plan? Here it is not mentioned. In the next page it is mentioned. So first of all, I tell you the meaning of organizational plan. Organizational plan is related to the form of business plan, form of business, what type of business we will start, what form of business we will start, if we are decided in it of organizational plan. हम जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोचा होगा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं तो सर्विस सेक्टर में जाना है, होलसेल बिजनेस करेंगे, रिटेल बिजनेस करेंगे, किस टाइप का बिजनेस करेंगे, तो ये सब तो हमारे माइंड मैप प्रिपेयर हो गया होगा बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फर्स्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फर्स्ट वी हैव डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस we will start in near future and which type of form of business we choose. There are various form of business in this chapter. For in the starting of this chapter we have read about the various form of business. It may be sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, joint stock company, cooperative society, in any form. So first of all we will decide what type of business we will start. क्या business करेंगे, कैसा करेंगे, ये हम decide कर लेंगे. Then after we will decide which form of business we will start, which form we choose for doing business. It may be sole proprietorship, joint stock company. ये सब हमें पहले डिसाइड करना क्यों जरूरी होता है कि हम कौन सा फॉर्म चूज करेंगे, बिकॉज every form of business have its own merits and demerits. We have already studied it. जब हम पढ़ रहे थे वेरियस फॉर्म्स के बारे में, तो हमने इन फॉर्म्स में देखा था कि हर जो फॉर्म है, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस अपने आप में परफेक्ट नहीं है. हर फॉर्म ऑफ बिजनेस के अपने ओन मेरिट्स है, डीमेरिट्स है. हमें डिसाइड करना है कि हम किस टाइप ऑफ और किस फॉर्म ऑफ बिजनेस हम चूज करते हैं. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्लान में क्या मेंशन है, सिंपली मैं यहाँ पे रीड करती हूँ. यू मे स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, but surprisingly all of them will fall into one of the four categories. हम कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर ले, डेफिनेटली वो किसी ना किसी इस कैटेगरी में फॉल करेगा. फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. हम हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. The second one is wholesale business. We have already studied what is wholesale business, what is retail business in the class 11. What is wholesale business? A business that buy products in bulk from the manufacturers to be sold in smaller lot to retailers. C. Third one. What is retail? Third one is retail. Retail business, a business that sells directly to the final consumer for final satisfaction. This is retail business. And the last one is service sector. यदि हम तीनों इस टाइप के बिजनेस नहीं चूज कर रहे हैं,
तो हम कौन सा बिजनेस चूज करेंगे? सर्विस सेक्टर. इट मे बी रेस्टोरेंट, इट मे बी सैलून सर्विसेज, इट मे बी car services, various type of services in which we not provide products, we provide services. It may be banking, financial, various type of services. So यदि हम कोई सा भी फॉर्म ऑफ बिजनेस, हम कोई सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन फोर कैटेगरी में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में वो बिजनेस फॉल करेगा. सो स्टूडेंट, नाउ we are reading up. This is the definition of organizational plan. What is the definition of organizational plan? Organizational plan is that part of the business plan that describes the proposed venture form of ownership. सिंपली क्या है? फॉर्म ऑफ ओनरशिप के बारे में बताता है. तो क्या डेफिनेशन है? Organizational plan is that part of business plan that describe the proposed venture form of ownership. ठीक है, प्रपोज मतलब जो हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर में, उसके बारे में, उसकी ओनरशिप के बारे में कि हम कौन सा फॉर्म ऑफ ओनरशिप चूज करेंगे. अब ये हम कोई सी भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये रीजंस हैं कि हम जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसमें से हम चूज करते हैं, क्योंकि कमेंसमेंट प्रोसीजर्स, ये रीजन है. ये यहाँ पे जो एफ तक पॉइंट्स गिवन है, ये रीजंस है जो हमको डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस हम चूज करें. कमेंसमेंट प्रोसीजर, यदि सपोज कीजिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यदि मुझे कमेंसमेंट प्रोसीजर इजी चाहिए तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चूज करूंगी. लीगल कांस्टेंट, मुझे यदि लीगल कांस्टेंट कम से कम चाहिए तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप चूज करूंगी. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट यदि मेरी बहुत ज्यादा है तो उस केस में मैं कंपनी फॉर्म चूज करूंगी. तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं. उन सारे रीजंस को कंसीडर करेंगे हम, एंड देन आफ्टर वी विल डिसाइड विच फॉर्म इज सुटेबल फॉर अस. और इन फॉर्म्स के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी इसी चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में स्टडी कर लिए. कौन कौन से फॉर्म है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इनटू फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेशंस. These are the 5 form of business. यहाँ पे ये पैराग्राफ गिवन है, मैं ये रीड कर रही हूँ. We know each of these forms has important implications on taxes, liability, continuity, financing, ownership. You are already familiar with the merits and demerits associated with the different form of organization. No form is best form. Entrepreneur, in light of multiple factors, decide the legal structure best suited to attain his her dream. जो मतलब वो अपने ड्रीम अचीव करना चाहता है, उसके लिए कौन सा परफेक्ट फॉर्म सुटेबल है वो डिसाइड करेगा. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इज द पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान दैट डिस्क्राइब द. अब ऑर्गेनाइजेशनल प्लान की बात करें तो हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे. हमने सपोज कीजिए कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है और मुझे वहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ चूज करना है. तो अब ऑर्गेनाइजेशन, अब बात आती है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे. तो यहाँ पे है फर्स्ट वन, द टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएटेड विद द सेलेक्टेड फॉर्म, lines of authority and responsibility of members of the new venture. हर मेंबर्स को क्या अथॉरिटी है, हर मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. थर्ड वन, हम क्या मेंशन करेंगे ऑपरेशनल प्लान में? द नेम्स, डेजिग्नेशन, एड्रेस एंड रिज्यूम्स ऑफ द मेंबर्स, ये कंसीडर करेंगे. फोर्थ वन, स्टेक ऑफ मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. स्टेक मतलब उनका कितना परसेंट पार्टिसिपेशन है, कितना परसेंट हिस्सा है अपने बिजनेस में. फिफ्थ वन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच मेंबर. जो भी मेंबर है हमारे बिजनेस के, उनकी हर का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सिक्स वन, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स अमॉन्ग मेंबर्स. यदि मेंबर्स के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. जैसा कि हमने देखा था पार्टनरशिप फॉर्म में भी इसके बारे में पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट हम वर्बल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट के क्या बेनिफिट्स है. तो उसी तरीके से हम ऑपरेशनल प्लान जो यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, उसमें मेंशन करेंगे
procedure for solving conflicts, disputes among members. And the seventh one is form of payment of the members of the organization. यदि organization के members को हम payment करेंगे तो कौन सा form of payment choose करेंगे. And the eighth one is voting rights. You know in which case voting right apply? In the form of company or cooperative society. Voting rights, managerial and controlling rights of members, all are points considered. Mention in which plan? Organizational plan. What is the next line? All this information provides a potential investors with a clear understanding of who control the organization, how other members will interact in performing their management functions. तो ये सब मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो हमारा खुद का फाइनेंस होगा सब कुछ, लेकिन यदि हम अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करते हैं, तो यदि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि वहां पे जो कैपिटल है वो किस तरीके से रेज होती है, विद द हेल्प ऑफ शेयर्स. तो हमें पता है शेयर्स कौन परचेज करते हैं, आउटसाइडर्स परचेज करते हैं. तो हमें हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स उन्हें मेंशन करनी होती है. और हमने जब पढ़ा था डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान, उसमें हमने 3 मिनट समरी वगैरह, एलिवेटर पेज उसके बारे में पढ़ा था. तो बिजनेस प्लान का व्यू करके, देख करके इन्वेस्टर्स आइडिया लगा सकते हैं किस टाइप का बिजनेस है, क्या है. तो ऑपरेशनल प्लान को देख के वो क्या आइडिया लगा सकते हैं, कौन कौन मेंबर्स है, बिजनेस को कैसे करेंगे ऑपरेट, और जो मैनेज मेंबर्स है इसके उनको रेम्यूनरेशन कैसे देंगे, हर पर्सन की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी. तो ये सब जो देख के कोई भी इन्वेस्टर उस बिजनेस के बारे में आइडिया लगा सकता है. और यदि हमारा ऑपरेशनल प्लान अट्रैक्टिव होगा या बिजनेस प्लान अट्रैक्टिव होगा तो इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में इजीली इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाएंगे. तो दिस इज ऑपरेशनल प्लान. स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं ऑपरेशनल प्लान के बारे में बता रही हूँ आपको. यहाँ पे इसके बारे में कुछ लाइंस मेंशंस है, तो ये आपको सिर्फ जनरल रीड करना है, स्पेसिफिक कुछ नहीं है. इट इज यहाँ पे एक लाइन है, मैं बता रही हूँ यहाँ पे. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान दैट हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू केयरफुली इवैल्यूएट एंड डिसाइड द लीगल स्ट्रक्चर फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड अफेक्ट लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटरप्राइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी. ये आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, बस रीड करना है यहाँ पे. तो बेसिकली हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में क्या देखा कि हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस किस टाइप का बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेल एंड सर्विस. यदि हमने फर्स्ट ये डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बाद में हम क्या डिसाइड करेंगे, फॉर्म ऑफ बिजनेस. और फॉर्म कोई से भी प्राइवेट जो फॉर्म है, प्राइवेट जो 5 फॉर्म्स है उनमें से हम कोई ना कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करेंगे. और हम चूज करने से पहले क्या देखेंगे, टैक्सेशन किस फॉर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल है, या हमारे फाइनेंस चाहिए तो किस फॉर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल है. सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस डिसाइड करेंगे, चूज करेंगे हम हमारे बिजनेस के लिए. तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल प्लान. It is one of the component of business plan. Student, in next video we will study about the next component of business plan. The next sixth number component of business plan, that is financial plan. In the next component, in the next video we will study about the next component of business plan, that is financial plan. So students, your work related to this topic is prepare notes and learn all highlighted lines and para, because these paras are important, paragraph are important from exam point of view. So student, you must learn these topics time to time. And in next video we will read about the financial plan of business, and this will be very important for from exam point of view. Okay students.